Hi guys, I'm Rohan Dasgupta and I have converted GM's Achievers round. So in this video, I'm going to tell you what questions were being asked during the Achievers round. So before starting the video, I just want to give you a small introduction about myself. So I did BTech in Computer Science Engineering and I have graduated in the year 2023. So उसके बाद 2024 में I joined an IT firm and I have been working over there for almost 2 years. It has been almost 2 years working over there. And talking about my achievements that I have filled in the application form for GIM, it's like I have worked as an organizer in our cultural fest of our college, जो Flames है. I've worked over there and also I've organized the beatboxing event of that cultural fest on my own. And myself is a big boxer. So मेरा जो भी beatboxing का awards है, certifications I have also uploaded in my achievements forms. And I've also won this award called Tech Expressway Merit Holder जो भी ऑफिस में है. I've also uploaded that achievement for the GIM Achievers round. Now talking about the interview experience, how it went. So my interview was scheduled on 18th of January 2026 at a particular hotel. So they were around, my interview slot was around 2 p.m. to 6 p.m. So I went there. तो वहाँ पर around 35 people था. Okay. So won my first round. I have read almost all the questions that I could recall right now. So yeah, these were the questions that were asked in my first round, right? So मेरे पास कोई पिक्चर्स और वीडियोस नहीं है क्योंकि आई वाज वेरी टेंस्ड. ओके. एंड मेरा कोई GDPI का कुछ प्रिपरेशंस आई हैवंट टेकन एनी प्रिपरेशंस ऑफ दैट. तो मेरा फर्स्ट राउंड जो था, मेरा कॉल आया अराउंड 3:30 को. सो आई वेंट देयर. तो पैनल में देयर वर 2 पीपल. वन जो सर था, ही वॉज अराउंड 40 years old एंड मैम जो था, ही वॉज अराउंड 30-35 था. बट मैम वॉज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग मी. शी वॉज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग. ओके. तो मेरे को when I sat down, so sir started asking question. Okay. So he started this question by asking that introduce yourself, Rangan. You have a work ex. Introduce yourself and tell me about your projects that you have done. तो मैं मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया कि आई वॉज एक्चुअली माई टेक्सटैक इज़ जेनरेटिव AI जो LLM है, उसको यूज़ करके ऑटोमेशन का जो काम है, जैसे क्वार्टरली बिजनेस रिपोर्ट हो गया, उसको ऑटोमेशन करना यूजिंग एजेंटिक AI और जैसे इनवॉइस प्रोसेसिंग्स हो गया. सो ऑटोमेशन का काम है यूजिंग LLMs, राइट. सो आई हैव एक्सप्लेन दैट एन इंट्रोडक्शन माई सेल्फ में, और भी बोल दिया कि वो बीट बॉक्सिंग इवेंट्स जो भी हम ऑर्गेनाइज किए थे एंड हैव पार्टिसिपेट इन दैट, वो भी जीते थे. जो भी सर्टिफिकेट्स, ओवरऑल अचीवमेंट्स हैव डन. इंट्रोडक्शन माई सेल्फ में. एंड ऑफिस में हम एक टेक बडी प्रोग्राम में हैव पार्टिसिपेटेड वेयर हैव मेंटर्ड द न्यू जॉइनर्स. आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस इंट्रोडक्शन माई सेल्फ. तो देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी. देन मैम जो था, तो वर्क एक्स के बारे में, जो भी मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पूछ रहा था, राइट. कि ऑटोमेशन कैसे करते हो, क्या सॉफ्टवेयर मतलब क्या यूज़ करते हो, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस उधर से पूछा था. तो फिर सर ने पूछा कि ओके रंगन, टेल मी व्हाट कोडिंग लैंग्वेज डू यू नो अपार्ट फ्रॉम पाइथन. ये ही आस्क्ड. सो आई सेड आई नो जावा, बट कॉलेज लाइफ में आई डिड जावा, बट जावा से मतलब अभी कुछ रिलेटेड नहीं है. सो द सर स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस फ्रॉम जावा. ओके. So if I remember, he asked me the first question that what is the difference between methods and functions. Okay. And I've completely forgotten the concept, right. I told sir that I couldn't recall at this moment. So next sir bola ki do you know anything about machine learning, about what kind of algorithms we use. I said yes, I know the algorithms that are being used in supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. So the first question he asked that tell me the difference between supervised, unsupervised and reinforcement learning. So it's a very basic question, तो हम उसका जवाब तो दे दिए तुरंत. Then सर बोला कि tell me all the supervised learning models that you know. तो हम linear regression, logistic regression, SVM सब बोल दिया, ठीक है. इज के नियरेस्ट नेबर सब बोल दिया. सो अनसुपरवाइज लर्निंग में फिर बोला कि अनसुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम्स बोलो. सो आई ऑल्सो टोल्ड हिम अबाउट द क्लस्टरिंग जो मेथड्स है. देन सर ने पूछा व्हाट इज़ वेरिएंस, राइट. जो वेरिएंस है, तो हम मॉडल अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के बारे में बता रहे थे, डिटेल में बता दिए. तो फिर बोला कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हाउ वेरिएंस इज डिफरेंट फ्रॉम मीन वैल्यू. वो भी एक्सप्लेन कर दिया. Then he started asking me questions that what is logistic regression, how is different from linear regression. So all machine learning का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो डेटा एनालिसिस में जनरली यूज़ होता है, वो
देन सर स्टार्टेड देन सर ये क्वेश्चन पूछा ओके कि हाँ, what are all the libraries, what are all the Python packages that you know? Okay, so I know about 20 different packages of Python. तो वो एक लाइन के लिए ऐसे मैटप्लॉटलीब हो गया, सीबॉर्न हो गया, ऐसे पाइथन का there are thousands of different packages. Okay, it's difficult to tell all the packages, so जितना भी I could remember I told them. Okay, so मैम अभी तक कोई questions नहीं पूछा, but she was constantly monitoring me. तो मैम फिर पूछा कि जो जेनरिक क्वेश्चन होता है, वाई डू यू वांट टू डू MBA, राइट. एंड थर्ड सेकंड जो मैम क्वेश्चन किया कि वाई GIM. ओके, सो GIM के बारे में आई टोल्ड दिस थिंग. ओके, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है ये बता देना कि 12:1 फैकल्टी रेशियो ऑफ GIM है, जिससे आई विल गेट अ स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप, राइट. ये फर्स्ट पॉइंट बोला. सेकेंड हुआ कि GIM इज़ द ओनली कॉलेज दैट हैव दिस रूरल इमर्शन प्रोग्राम. सो ये बोल दिया कि आई दिस रूरल इमर्शन प्रोग्राम जो है कि हम हैविंग बिंग लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेरे को रूरल आइडियाज़ के बारे में वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस करता है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, राइट. तो दिस विल बी इनक्रेडिबली हेल्पफुल फॉर मी टू बिकम अ रेस्पॉन्सिबल मैनेजर, बिकॉज GIM के इथोस होता है कि रेस्पॉन्सिबल मैनेजर बनाना, राइट. तो मोरलेस ये क्वेश्चन था. और मैम ने पूछा थी व्हाट वर योर लर्निंग्स फ्रॉम योर फ्रॉम बीइंग एन ऑर्गेनाइजर एट योर कॉलेज फेस्ट. वो जो जेनरिक क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव फेस्ड एंड हाउ डिड यू मैनेज दैट. फिर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, तो सर पूछा कि व्हाट करंट अफेयर्स डू यू नो राइट नाउ. तो आई सेड मेरा जो रिसेंट इशू था विज लाइक जब इंटरव्यू हो रहा था उसके पहले ट्रम्प ग्रीन लैंड चाहिए, राइट. ट्रम्प को ग्रीन लैंड चाहिए. सो आई हैव एक्सप्लेन कि I know that Trump needs Greenland. So सर बोला कि explain why Trump needs Greenland and what's your view on Trump, right. तो ट्रम्प के बारे में हम बोल दिया कि आई थॉट ट्रम्प टू बी अ बिजनेसमैन. वैसे ट्रम्प के बारे में बहुत कुछ बोलना था, बट आई थॉट दैट्स इट्स एन MBA इंटरव्यू, राइट. तो उसका बिजनेस पर्सपेक्टिव बोल दिया कि आई थॉट ट्रम्प टू अ बिजनेसमैन. एट फर्स्ट व्हेन ही गॉट इनटू इलेक्शन वो वीज़ाज बेच रहा था, फिर सिटीजनशिप बेच रहा था, उसका खुद का जो भी है ना, ट्रम्प एयरलाइंस है, ट्रम्प यूनिवर्सिटी है, इवन ट्रम्प स्टेक है. फिर ट्रम्प टावर्स है जो गुड़गांव में हुआ था कुछ महीने में, इट गॉट सोल्ड. आई टोल्ड हिम दैट हिज बिजनेस साइड, आई टोल्ड हिम अ गुड मार्केटर. फिर ही स्टार्टेड तारीफ वर्ड, ही इज़ यूजिंग डॉलर एज अ जियो पोलिटिकल वेपन राइट ना, जिससे मतलब मार्केट हिला के रख दिया. तो ये सब एक्सप्लेन करके दिया. ग्रीनलैंड चाहिए बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ओवर देयर. देन ही कैप्चर्ड वेनेजुएला रिसेंटली. एवरी वन नोज वाई ही कैप्चर्ड वेनेजुएला, क्योंकि उसको पेट्रोलियम का नीड है, राइट. तो ये सब एक्सप्लेन किया एंड दे वर हैप्पी अबाउट इट. एंड तो फर्स्ट राउंड में हाँ, एक एक क्वेश्चन मेरे को सर पूछा था ना, मैम पूछा था, राइट. तो मैम ने पूछा था कि विल जेन AI टेक्स अवर जॉब और नॉट, आई मीन विल LLM टेक अवर जॉब और नॉट, ये पूछा था जस्ट. तो हम बोला कि नहीं, बिकॉज वी आर मेकिंग रेस्पॉन्सिबल AI राइट नाउ. रेस्पॉन्सिबल AI में वी ऑलवेज कीप अ ह्यूमन इन लूप, राइट. एंड इट्स लाइक और भी एक्सप्लेन किया कि इट्स लाइक जो LLM अभी यूज़ हो रहा है और जेन AI जो यूज़ कर रहा है, इट्स एक्चुअली गिविंग न्यू जॉब्स, राइट. जैसे इफ समवन यूज VS कोड, राइट, देयर इज समथिंग कॉल्ड GitHub Copilot, and even people who don't understand, have a little bit knowledge of coding, they can use GitHub Copilot to create stuff. तो ये एक्सप्लेन कर दिया एंड दे वर लाइक हैप्पी. ओके, तो मेरा फिर सर बोला इट्स अ ग्रेट इंटरव्यू. देन आई लेफ्ट. तो मेरे को फिर हॉल पे दे टोल्ड मी टू, आई मीन जो भी था, दे टोल्ड मी टू वेट फॉर 15 minutes. दे टोल्ड मी टू वेट फॉर 15 minutes, बट हम 5 मिनट ही वेट किए. देन आई वॉज कॉल्ड फॉर द स्पॉट इंटरव्यू. एंड डैम, स्पॉट इंटरव्यू वॉज लाइक बहुत टफ क्वेश्चंस पूछा था. ओके, तो जैसे ही घुसा स्पॉट इंटरव्यू के लिए, तो दो ही पैनल, मतलब पैनल में 2 मेंबर्स थे. एक सर था, मैम था, एंड दे वर वेरी मच नॉलेजेबल. ओके, बट पहले दे मेड मी फील कंफर्टेबल, राइट. फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का इंटेंसिटी बढ़ता गया. तो फर्स्ट सर ने पूछा स्पॉट इंटरव्यू में, सेकेंड राउंड जो है. सो सर पूछा कि रंगन टेल मी अबाउट योरसेल्फ दैट इज़ नॉट इन द एप्लीकेशन फॉर्म. तो हम बोले कि आई एम अ बीट बॉक्सर. हम बीट बॉक्सर हैं, बीट बॉक्सिंग इवेंट्स कम्युनिटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं. सैटरडे संडेज़ में इधर टाइम मिलता है तो आई गो फॉर द जैमिंग सेशंस, उसमें मज़ा आता है. तो मैम बोला कि सर को बीट बॉक्सिंग का आइडिया नहीं था, सो ही थॉट टू बी बॉक्सिंग कुछ है. तो मैम का आइडिया था, सो शी नोज. देन शी टोल्ड मी, रंगन, आई वांट टू हियर यू डू बीट बॉक्सिंग, राइट. सो
It was very awkward for me because interview situation में beat boxing करना is like I have never done it before and it was very serious for me. So सर बोला कि take your time, तो हम बोले कि no sir, I don't need time. फिर हम थोड़ा सा सुना दिया and it was my heart was pounding and कर दिया कुछ भी. Okay, so फिर हम आई गेस आई डिड फॉर 5-6 seconds, ओके 5-6 seconds एंड बोल दे कि आई एम गुड इन बीट बॉक्सिंग बट प्रॉपर माइक्रोफोन्स नहीं है और भी साउंड्स कर सकता, तो उधर ही हम कट कर दिया. तो फिर सर पूछा ओके वाई आर यू स्विचिंग टू MBA इंस्टेड ऑफ M.Tech, यू सिम टू बी रियली डूइंग गुड, great at your IT company, so why you are switching to MBA instead of M.Tech, right? तो हम बोल दिए कि जो भी बिजनेस साइड है, बिजनेस पर्सपेक्टिव है, यदि हम 6-7 साल, इफ आई वर्क फॉर 5 to 6 years in my technical field, I won't get to know about the business aspects, and I think that this is the right time because whatever technical knowledge I have gained, right, it had lent me a foundation. जो भी फाउंडेशन है मेरे को, मतलब फाउंडेशन कर दिया. अब हम आई कैन सेट अप माई बिजनेस वेंचर्स, राइट. और एंड फ्यूचर में LLM स्टार्टअप्स, मतलब AI स्टार्टअप्स जो है, इट इज़ गोइंग टू गेट ब्लूम एंड आई नीड टू नो द बिजनेस साइड एज सून एज पॉसिबल. तो ये एक्सप्लेन कर दिया. और M.Tech क्यों नहीं किया, तो ये एक्सप्लेन हम ऐसे किया कि व्हेन आई ग्रेजुएट फ्रॉम B.Tech, राइट, B.Tech में मेरे को AI रिलेटेड, मतलब AI रिलेटेड सब में जॉब मिल गया, तो हम ऐसे ही घुस गए. तो M.Tech तभी नहीं किए. और सर फिर पूछा कि M.Tech अभी भी कर सकते हो, व्हाई डिडंट गो फॉर योर M.Tech, राइट. तो हम बोले कि अभी M.Tech आई कैन डू दैट, बट B.Tech है, आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी लेट द फाउंडेशन, अभी बिजनेस मेरे को चाहिए. तो सर वॉज मोर और लेस हैप्पी. सो फिर मैम ने एक जेनेरिक क्वेश्चन फिर से पूछा, ओके, जो फर्स्ट राउंड में था, विल जेन टेक ओवर द जॉब, राइट. तो हम बोले नो. तो मैम बोला कि जैसे वी यूज़ गूगल ट्रांसलेटर, राइट, इट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. मैम बोला कि गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके जो ट्रांसलेटर का जॉब होता है ना, देवर जॉब विल गेट ओवर सून, राइट. उनका जॉब तो गूगल ट्रांसलेटर खा लेगा. तो बोला हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट जेने विल नॉट टेक ओवर जॉब, जेने विल नॉट टेक ओवर जॉब. तो हम बोले कि व्हेन जब पुतिन आएगा इंडिया पे, राइट, so he is not going to use Google Translator, right, he is going to use a human translator because AI translator could be use करोगे, right, वो उसमें डेटा प्राइवेसी, डेटा ब्रीच कुछ भी हो सकता है. ओके, द नेक्स्ट थिंग बोला कि ठीक है, वॉट एवर पुटिन यूजेस ह्यूमन ट्रांसलेटर, राइट. तो व्हाट अबाउट द अदर पर्सन, जो 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 मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, मतलब नॉर्मल पीपल है, ठीक है, नॉट किसी का नेता का ट्रांसलेटर नहीं है. तो आई सेड दैट व्हेन यू मतलब आप जब टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हो, वेदर यू गो इन हिल्स और फॉरेस्ट, यू नीड अ गाइड, राइट. अब लोकल पीपल से व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट, यू नीड अ ह्यूमन ट्रांसलेटर, स्पेशली योर गाइड हु कैन ट्रांसलेट योर वर्ड्स, राइट. क्योंकि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन तो नहीं होगा विद इन अ फॉरेस्ट और इन योर माउंटेन्स, राइट. आपके पास नेट कनेक्शन नहीं होगा, सो यू आर नॉट एबल टू यूज़ थ्रू गूगल ट्रांसलेटर, राइट. तो बोला ओके फाइन. फिर सर ने फिर और एक क्वेश्चन किया कि रंगन, इफ़ आई मीट यू आफ्टर 35 years, where do you see yourself? तो हम बोले कि initially after, if I get selected in GIM, right, or in GIM, right, so after graduating I'll gain some experience in working in marketing or consultancy firm. उसके बाद हम बोले कि I will either try to climb up the ladders in that company और मैं खुद का कंपनी स्टार्ट करूँगा, वो बेस होगा AI का होगा. फिर बोला कि फिर सर ने बोला कि हाँ, सर ने पूछा कि बोला कि व्हाट्स AI, मतलब AI का जो मार्केट है इंडिया में कहाँ पर स्टैंड करता है इन कंपैरिजन टू अमेरिका, राइट. तो हम बोल दिए. तो ये हम करंट अफेयर्स में पढ़े थे कि इंडिया का AI मिशन है, इंडिया AI मिशन, वेयर इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड अराउंड $2 billion. तो वो सब बोल दिए. अभी AI स्टार्टअप्स अराउंड 200 स्टार्टअप्स है, बट दे आर यूजिंग LLM दैट इज़ क्रिएटेड बाई अदर कंट्रीज़. फॉर एग्जांपल अदर कंट्रीज़ मतलब OpenAI का ChatGPT हो गया, वो मतलब पूरा है. एंथ्रोपिक का क्लॉड है, ये सब मार्केट खा कर बैठा है, बट India doesn't have its indigenous LLM. And on February, and have also mentioned that February next year, मतलब February next month जो है इस year 2026 February, इंडिया का two indigenous LLM will going to get launched, that is Sarvam AI and Bharat Gen. So वो indigenous LLM है, I have also explained that. तो AI startup will take some time to जो ecosystem है वो बनने का थोड़ा टाइम तो लेगा. तो हाँ,
फिर सर ने पूछा व्हाट इज़ AI इंडिया मिशन, तो वो एक्सप्लेन तो कर दिया. एंड या मैम ने मेरे को पूछा वाई शुड ही सिलेक्ट यू. या दिस वॉज अ वेरी टफ क्वेश्चन. और कुछ भी रीज़न दे रहे थे. इज़ लाइक मैम बोल रहा था वाई शुड ही सिलेक्ट यू. तो फर्स्ट रीज़न आई दिया कि आई डोंट नो, वो क्या ही बोले. तो हम बोले कि मेरा जो AI नॉलेज है, हम मतलब GIM का जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है वो सब सीख के आई क्रिएट माई ओन बिजनेस वेंचर. इट वॉज अ वेरी स्टूपिड आंसर, आई नो. तो फिर मैम ने पूछा वाई शुड आई सिलेक्ट यू, फिर से पूछा. ठीक है. तो हम बोला आई कैन कंट्रीब्यूट टू GIM. ये बोल दिया, मुंह से निकल गया. एंड मैम जस्ट आस्क हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू GIM. तो आई सेड दैट आई विल थिंक ऑफ स्टार्टिंग अप अ न्यू क्लब एट GIM. जो भी AI स्टार्टअप्स है उसके बेसिस पे हम क्लब खोलेंगे. एंड सर वॉज लाइक वाह. And sir was like, there are already 20 plus active club at GIM and we are closing down the clubs, right? Why do you want to open a club? तो हम बोले कि हम लोग का जो entrepreneurship जो मतलब entrepreneurship जो जो इन्वायरमेंट है वो सब कॉलेज और स्कूल लाइफ से स्टार्ट होता है. तो हम जब क्लब एक खोलेंगे जहाँ पर सब लोग आएगा, जो भी AI का मेरा जो स्किल्स है AI का वो हम सिखा देंगे, उसको सब लोगों को सिखा देंगे. ऐसे करके जस्ट कुछ कुछ एक्सप्लेन करके मेक देम अंडरस्टैंड कि हाँ हम कर देंगे, हम क्लब खोल के ही रखेंगे. ठीक है. तो मैम वाज लाइक ठीक है, ठीक है, कन्विंसिंग है. फिर फिर मैम बोला कि तुम इतना AI क्यों बोल रहे हो पूरा कन्वर्सेशन में. इन आवर एंटायर कन्वर्सेशन वी हैव AI, यू हैव यूज द टर्म AI फॉर 20 टाइम्स. वाई तुम क्या कन्वर्सेशन घुमा के AI की तरफ ही लेकर जा रहे हो, वाई. तो हम बोला ना, मेरा प्राइमरी मतलब मेरा टेक फील्ड में काम किया इसलिए आई हैव यूज्ड AI, राइट. मेरे को जो आता है स्किल्स वही तो बोलूँगा, राइट. तो हम ऐसे करके बोल दिए. तो हाँ, फिर आई गेस एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया. ये ना फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये सर ही पूछा था कि इतना सडन करियर चेंज मेरा क्यों हुआ है. इट्स लाइक आई एम वर्किंग इन JNI, राइट. वाई सडन करियर चेंज, what forced you to decide this career change. Did you make any mistakes in your current project and decided to leave, or aren't you getting any promotion in your office, right. ये क्वेश्चन मेरे को जब बैठे थे सर ने पूछा कि इतना सडन करियर चेंज मतलब MBA क्यों कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट में कुछ मिसहैप्स, हैव यू डन एनी मिसहैप्स और नॉट, और एंड डिसाइडेड टू लीव, आरंट यू गेटिंग एनी प्रमोशंस और नॉट. सो ये क्वेश्चन मेरे को पूछा था. ओके. तो हाँ, तो मोरलेस मेरा जो इंटरव्यू था इज़ लाइक दे वांट टू नो यू एज अ होल. दे वर नॉट टेस्टिंग माई नॉलेज. जो फर्स्ट राउंड था दे आर गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज, एंड सेकेंड राउंड वॉज मोर लाइक दे वांट टू नो यू. तो इंटरव्यू होने के बाद ओके, सो दे टोल्ड मी टू वेट आउटसाइड. तो आई वॉज वेटिंग फॉर अराउंड 5 to 10 minutes. उसके बाद मेरे को फिर से कॉल किया अंदर. सो दे हैंडेड मी ओवर दिस एंड सर फिर से पूछा जी कि रंगन वाई आर यू इंटरेस्टेड टू ओपन अप अ क्लब, राइट. तो हम बोले कि फिर से वही सेम रीज़न दिए कि एक एनवायरनमेंट जब क्रिएट होगा, राइट, उस एनवायरनमेंट से ही लोग सीखेगा. मेरा जो स्किल्स है हम किसी और को देंगे, वो उधर फर्दर ग्रो करेगा. तो मैम बोला कि यू डोंट नीड टू ओपन एनी क्लब, वॉट एवर एग्जिस्टिंग क्लब्स यू हैव, जैसे वो E2 क्लब जो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, वो सब कुछ क्लब्स बोला उधर ज्वाइन करने के लिए, राइट. So this is how my interview went. And yeah, the interview was good. I won't say bad because the interview as a whole was not मतलब उतना डेप्थ जो नॉलेज है, जो ग्रेजुएशन का नॉलेज है, वो सब चेक नहीं किया. इट्स लाइक दे वांट टू नो यू एंड द फैकल्टी वाज रियली गुड, जो भी फैकल्टी था. ओके, दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी अचीवर्स राउंड के लिए सिलेक्ट हुआ है और होंगे या फ्यूचर में मेरा जो वीडियो देखेगा, सो द डॉक्यूमेंट्स दे आर गोइंग टू चेक इज़ लाइक जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो पोर्टल में, यू नीड टू टेक अ फिजिकल हार्ड कॉपी ऑफ दैट. एंड सेकेंडली जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है GIM का, मतलब GIM का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका भी फिजिकल हार्ड कॉपी लेके जाओ, इट विल बी फाइन. और जो भी जिन लोगों का वर्क एक्सपीरियंस है, टेक योर लेटेस्ट मंथ सैलरी स्लिप और या प्रीवियस मंथ का सैलरी स्लिप है, वो उसका हार्ड कॉपी चाहिए, और ऑफर लेटर का हार्ड कॉपी. यू नीड टू टेक इट ओवर. Yeah, this was my entire
एक्सपीरियंस ऑफ GIM जो भी अचीवर्स अराउंड था. एंड ऑल्सो देर इज़ अ गुड न्यूज़, इज़ लाइक 2026 है, बोला कि 2026 है विल बी गेटिंग MBA डिग्री इंस्टेड ऑफ PGDM. सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़. एंड या दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ GIM's अचीवर्स अराउंड. एंड बेस्ट ऑफ लक जिनका भी इंटरव्यू है अचीवर्स अराउंड के लिए. ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइस. ओके, थैंक यू.